Assalamu alaikum students. I am Madi Harshad and I am going to deliver lecture on the topic of communalism in India during Muslim period. Dr. Muhammad Ibrar Ahmad is principal teacher of this course and I am working with him as a co-teacher. Communalism in India is a vast topic. Therefore, we divided this topic in two lectures. In my first lecture, I am going to explain about the communalism in India during Muslim period. And in my second lecture, I will elaborate that how communalism arise and exploited by British during their rule. कम्युनलिज्म को इंडियन पर्सपेक्टिव में समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली कम्युनलिज्म है क्या और किस बेसिस पे जो है people would unite their community. So communalism is basically a political ideology which means to unify the community for common interests. It also emphasizes the unity of the community against the other communities. It is considered or it's an ideology which unify a community for the common interest. Uh, we can say that it's a strong attachment of individuals to one's community. But one thing remember that in Indian discourse, it is always considered as unhealthy attachment. Actually, it can be defined into two aspects. In a positive aspect, communalism stand for affinity of an individual towards his own community for the purpose of social and economic uplift. ठीक है, तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हम the people united themselves for the uplift or betterment of their community. ठीक है, but in a negative connotation, it is an ideology which means it's the separate identity of a particular group who having tendency to promote his own interests at the expense of others. So in a multi-religious society, uh, uh, a particular group demand their rights or a particular group unite themselves to protect their rights, and their rights or their interests can be economic, can be political, and can be social. Okay? But when we talk about communalism in South Asian perspective, it is always used to define the difference between various religious groups. साउथ एशियन के पर्सपेक्टिव में कम्युनलिज्म को हम जब देखते हैं तो वो हमेशा हमें एक डिफरेंस बताता है बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स. ठीक है, तो the interest of the follower of the different religion or different communities are to be seen completely incompatible, or it can be hostile. In Indian communalism, in Indian context, as we all know that India was a land of diversity. It had multi-religious, multicultural society. Uh, so when we talk about communalism in Indian perspective, so it always associate with tension and clashes between different religious communities. ठीक है, सो जो हमारा कोर्स है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है. तो हमारा बेसिक फोकस जो है वो इन हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उस पे रहेगा. तो मेरा जो लेक्चर है, there were other communal groups or communal communities in the India, but in my lecture I'm just going to focus on the Hindu and Muslim community. ठीक है, how I will explain that how Muslim united themselves against the Hindu community.
and what were the causes and what were the factors that Muslim realized to communi- com- realized to unite themselves. Communalism or communal thought uh, always resulted in communal violence. ठीक है? अ, जब एक कम्युनल एक जब एक खास ग्रुप जो है एक खास कम्युनिटी के लोग अपने कॉमन राइट्स के लिए इकट्ठे होते हैं और व्हेन they they do not fulfill their rights, they fulfill not their desires to uh, get their rights, uh, which then they became violent. ठीक है? तो a violent disturbance of peace between the two or more than two groups or between the different group of people uh, who are having divergent political and economic interests. So disturbance of peace in the society between the different groups will be called और कंसिडर एज कम्युनल वायलेंस. ठीक है? एक खास कम्युनिटी के लोग जब अपने आप को अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए अपने आप को यूनाइट करते हैं फॉर द सेक ऑफ और एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. ठीक है? जब दूसरों की जब एक कम्युनिटी के खास कम्युनिटी के लोगों को अपने राइट्स नहीं मिल रहे होते, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम्स वर को एग्जिस्टेड पीसफुली, लेकिन जब मुस्लिम्स को अपने राइट्स नहीं मिले, जब उनकी तो राइट्स नहीं मिले तो आहिस्ता आहिस्ता दे टर्न टूवर्ड्स टू डेवलप देयर आइडियोलॉजी. ठीक है? जैसा कि आपने अपने कोर्स में देखा पढ़ा है कि आइडियोलॉजी कब डेवलप होती है, जब क्राइसिस आते हैं. तो मुस्लिम कम्युनिटी को जब क्राइसिस आए, अपनी आइडेंटिटी अकल क्राइसिस आए, तो दे यूनाइट देमसेल्फ. And when they didn't get their rights and uh, uh, they didn't fulfill their desires or demands, then they became violent. ठीक है? Ancient India has been a multi-religious, multicultural and multilingual, multiracial character for centuries, but the forces of tolerance have always been strong in its soil. एंशियंट इंडिया के अंदर हमें कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते. उसकी वजह जो है वो क्या है कि हिंदुइज्म एक बहुत पुराना मज़हब था, जिसके व्हेन हिंदुइज्म की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उसकी जो फंडामेंटलिस्ट थॉट थी, वो बढ़ती गई. देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर द रिएक्शन ऑफ द हिंदू कंजर्वेटिव थॉट. ठीक है? बुद्धिज्म जैनिज्म जो कि मूवमेंट्स थी और बाद में रिलीजन्स बने, दे असेंबल्ड इन हिंदू रिलीजन. सो हिंदू रिलीजन accepted or mingle there the Buddhism and Jainism. So therefore there was no communal conflicts were seen in ancient India. Okay? People of different faith coexisted peacefully. बुद्धा, हम बुद्धा की एग्जांपल लेते हैं कि he was first Indian prophet who gave the concept of secularism. और Ashoka, who was the king, he followed the policy of peace and religious tolerance. तो एंशियंट इंडिया के अंदर हमें कम्युनल बेसिस पे जो है पीपल वर नॉट यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल, बिकॉज यहाँ पर जो दो बड़े रिलीजन थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, दे असेंबल्ड इन हिंदू रिलीजन. लेकिन जब इस्लाम आया, बुद्धिज्म और जैनिज्म तो असेंबल हो गए हिंदू रिलीजन में आके, तो पीपल वर नॉट नीड टू यूनाइट देमसेल्फ. बट जब इस्लाम आया तो इस्लाम वाज डिफरेंट फ्रॉम दीज रिलीजन्स. Islam did not assemble in Hindu religion. Okay, uh,
जब इस्लाम ने हिंदुइज्म के अंदर एक अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट कोड ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसका फर्स्ट रेफरेंस जो हमें मिलता है इब्न बतूता, हु वाज अ ट्रेवलर of India during the second half of 14th century. He wrote in his book that there was a tension between Muslim merchants and Hindu. Muslim merchant, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि इस्लाम जो है, इस्लाम आने से पहले भी जो थी, अरब एंड सब कॉन्टिनेंट हैव ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। लेकिन जब इस्लाम आया और मुस्लिम मर्चेंट्स जो थे और मुस्लिम ट्रेडर हु एक्सेप्टेड इस्लाम, इस्लाम एंड दे वर लिव्ड इन मालाबर कोस्टल एरिया and where he preached Islam, or some Hindu impressed by their behavior. But जब इस मुस्लिम मर्चेंट्स जो थे वहाँ पर मालाबर कोस्टल एरिया वाली साइड पे जब वो रहते थे, एंड दे मेड अ कॉलोनी ओवर देयर, सो Ibn Battuta, he wrote in his book that there was a colony of about 4,000 Muslims at Mangalore, uh, uh, which is ruled by Ramdev. So there were frequent conflicts broke out between Muslim and Hindu community, and an emperor always ensured peace there. Okay? And they resolved their problems uh, according to uh, according to their needs, because merchants were the need of at that time for the subcontinent. तो हमें जो फर्स्ट रेफरेंस मिलता है इब्ने बतूता की बुक से कि इस्लाम जब आया तो हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान जो थे कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए। लेकिन उससे पहले एंशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में हमें मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान, सॉरी, एंशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में हमें कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं मिलते। कम्युनल जो वायलेंस है या कम्युनल प्रॉब्लम्स जो है, दे वर नॉट देयर। Okay, let's talk about Muslim period. In medieval period, uh, medieval ruler did not encourage communal violence. क्योंकि मुगल पीरियड के टाइम पे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू वर इन मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी के बगैर आप अपनी कोई भी स्टेट को रन नहीं कर सकते। सो देयरफॉर हिंदू were appointed on a very high rank in administrative or even military. So, okay, we talk about Akbar, Jalaluddin Akbar, who was a secular emperor who practiced or believed that all religions should be united, और उसने सब religions की जो थी वो अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके, and he created a harmony and peace among the society through his दीन इलाही। तो दीन इलाही जो थी का कॉन्सेप्ट जो है उसका अकबर का, it created a harmony among the Hindu and Muslim. At that time जो राजपूत उसकी पॉलिसी थी, राजपूत पॉलिसी की वजह से और उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, रिलीजियस टॉलरेंस जो थी उसकी, हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी के दरमियान हमें कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आए। ठीक है। उसके बाद सूफी और भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो थी, ये दीज टू मूवमेंट्स वर एक्टेड एज अ ब्रिज बिल्डर बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम क्लास। और जो लोअर रैंक की जो सोसाइटी थी, लोअर रैंक की सोसाइटी, they came to close, and there was a birth of composite culture at lower ranks of the society. तो जो सूफी का जो कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद का और सुलह कुल का, कि इट डेवलप अ कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल कम्युनिटीज। सूफीज का जो सुलह कुल की कॉन्सेप्ट है, उसने सोसाइटी के दरमियान एक हार्मनी क्रिएट की, जिसकी वजह से कम्युनल बेसिस पे हमें जो थी डिफरेंस नज़र नहीं आया। उसके बाद दारा शेखू, who was the son of Shah Jahan, he was also believer of doctrine of Wahdatul Wujud,
and in his book Majmal Behrian, he tried to synthesize the two great religions, Islam and Hinduism. तो शाहजहां का जो बेटा दारा शिकू था, उसने एक एक सिंथेसाइज एक फॉर्मूला दिया कि हिंदू और मुस्लिम्स दे देयर आर द दीज आर द टू ग्रेट रिलीजन्स, और उसके और उनके दरमियान जो थी सिमिलैरिटीज को प्रेजेंट किया. सो और Akbar, Jahangir and Shah Jahan, they were a secular emperor, and they adopted the policy of non-interference in religious matter. तो religious matters को जो था उन्होंने इतना उसके religious matters के अंदर उसने उन लोगों ने ज़्यादा interfere नहीं किया. ठीक है. अकबर की जो दीन इलाही की पॉलिसी थी, जिसने सारे स्पेशली हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया, और उसकी एक वजह ये भी थी कि हिंदू जो थे देवर इंजॉइंग देयर राइट्स, they have a higher appointment in administrative and military, so they have not any social and economic और cultural problem. क्योंकि अकबर के बारे में कहा जाता है कि होली की सेलिब्रेशन वो करता था, और उसके जो हिंदू जो थे वो देवर फ्री इन देयर प्रैक्टिसेस, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में हमें मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, क्योंकि हिंदू वर इन मेजॉरिटी, एंड दे वर एंजॉयिंग देयर राइट्स. ठीक है. they are free in their religious matter. They have no they haven't any economic problem. They have not any cultural or social restrictions. So they they were happy. So Muslim were in a Muslim was the ruling class. But Aurangzeb के time period में, who was a least tolerant for other religious groups, he was basically responsible to create the feelings of communal difference between Hindu and Muslim. पहली चीज उसने क्या की कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो था, he imposed jizya, and in many places he ordered to destruct the temples. So although these incidents were not common, but elite class जो थी, जो upper class थी, वो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी और राजपूत पॉलिसी, उससे इफेक्ट हुई. ठीक है. राजपूत जो थी, who were enjoying a lot of in अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां के टाइम पीरियड में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में राजपूत जो थे वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेशन में चले गए. इन मैनी प्लेसेस राजपूत established their own state. Majority of Indians were rural, and they were aloof from such influences. So people coexisted peacefully. लॉयर रैंक पे जो था वो इतना इफेक्टिव इन कॉमन औरंगजेब के टाइम पे इतना नहीं हुआ, लेकिन अपर क्लास के अंदर जो था वो देयर वाज औरंगजेब created a feeling of communal differences. But in a lower rank, people were coexisted peacefully. Although they were very rigid in their religious practices or cultural rituals or traditions, but it never became barrier in the peaceful coexistence. So overall, the Hindu and Muslims in those days had common economic and political interests. कम्युनलिज्म जो है वो औरंगजेब के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ. एक तो उसने राजपूतों को नाराज कर दिया, और एक सिविल वॉरफेयर की जो सिचुएशन थी, एक एम्परर की डेथ हो जाती और उसके बेटे जो थे वो थ्रोन में आने के लिए, पावर में आने के लिए उनके दरमियान जो जंगें शुरू हो जाती, वो जंगें जो थी वो एक वजह बनी एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस का. ठीक है. बहुत से जो थे लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने अपनी एक और राजपूत जो थे अपनी एक स्टेट क्रिएट कर ली, और लैंडलॉर्ड एंड जमींदार्स who were taking heavy tax
फ्रॉम द पीजेंट्स। तो पीजेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा, पीजेंट क्लास जो थी वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। तो जब पीजेंट क्लास एक इफेक्ट हुई तो इसका मतलब है कि कॉमन जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो अपर क्लास से इफेक्ट होते होते लोअर रैंक्स पे आ गए। ठीक है। पहले तो एक राजपूत और जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर डिसएसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम द दिल्ली थ्रोन। आहिस्ता आहिस्ता एक उन्होंने अपने आप को जो था वो डिसएसोसिएट करते गए। लेकिन जब लैंडलॉर्ड्स उस और जमींदार जो थे, दे व्हेन दे पुट हैवी टैक्सेशन ऑन द पीजेंट्स, तो पीजेंट्स के दरमियान जब इकोनॉमिक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई सोसाइटी के अंदर, तो पीपल वर यूनाइटेड देमसेल्फ फॉर देयर इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है। और लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक डिस्टरबेंस पैदा हो रही है सोसाइटी में। तो लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में व्हेन मुगल्स जो थे वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है कि हिंदू जो थे अपने आप को रिवाइव कर रहे थे। दिस दैट एज इज ऑल्सो कॉल्ड अ हिंदू रेनेसांस, क्योंकि हिंदुओं को ये लगा कि अब मुस्लिम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो नाउ वी शुड रिवाइव, नाउ वी शुड यूनाइट देमसेल्फ। और एक तो इकोनॉमिक कॉजेस की बेसिस पे पीपल वर गोइंग टू यूनाइट। उस जमाने में जो है वो फराइजी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उसके अंदर पीजेंट क्लास इंक्लूड थी, और भी बहुत छोटे छोटे लेवल पे जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल वर यूनाइटेड देमसेल्फ। उस और शुद्धि मूवमेंट उसकी जो बेसिक इसका जो बेसिक पर्पस था कि हिंदुइज्म के अंदर जो है जो लोग जो है हिंदुइज्म को छोड़ के चले गए हैं, तो उनको दे शुड इम्प्योरीफाई, उनको इम्प्योर करने के लिए जो थी ये मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की गई। तो लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में रिलीजियस पॉलिसीज अकबर से जो एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई थी, और लेटर मुगल्स वो तो इतने कैपेबल नहीं थे कि उन्होंने इस स्टेटस को जो था इसको मेंटेन रखा और इस हार्मनी को मेंटेन किया बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है। और जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज पे तो पीपल वर यूनाइटेड देमसेल्फ ऑन इकोनॉमिक बेसिस, विच इकोनॉमिक बेसिस और रिलीजियस की बेसिस पे हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हो गई। उसके बाद काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और मुस्लिम्स जो थे उनकी उन फराइजी मूवमेंट मुस्लिम जो थी वो फोकस कर रही थी कि नाउ मुस्लिम शुड फॉलो द इस्लामिक प्रिंसिपल। ठीक है। लेट ये वो टाइम पीरियड है क्राइसिस का जब हिंदू और मुस्लिम दे वर सर्चिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। जैसा कि आप लोगों ने आइडियोलॉजी की का कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि आइडियोलॉजीज जब बनती हैं जब क्राइसिस आती हैं सोसाइटी में, तो लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में जो सोसाइटी के अंदर एक रिलीजियस, इकोनॉमिक और एक डिस्टरबेंस पैदा हुई, और जिसकी वजह से हिंदू जो थे they were trying to revive themselves, and Muslim were united themselves for their Islam or on the name of Islam। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, सर्वाइवल जो था वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का स्टार्ट हो गया। जब बात आइडेंटिटी और सर्वाइवल की आ गई, तो नाउ अपनी अपनी जो कम्युनिटी के लोग थे दे वर गोइंग टू यूनाइट देमसेल्फ। ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि
जो लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में जो क्राइसिस स्टार्ट हुए, और उसकी ये लेट इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी जो है वो अपनी आप को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कर रही है। और ये जो कम्युनल जो फीलिंग्स है बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, इट वाज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। बहुत सी जगहों पे जो है लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में कम्युनल राइट्स जो थे they were took place in Delhi, in Kashmir in 1719-20, in Ahmedabad in 1730, and it was also on Delhi and Kashmir. तो जो communal rights थे between the or communal violence were started between the Hindu and Muslim community in later Mughals time period. But these feelings were existed in the society, but later on the British when British came in India, they were trying to exploit this situation. मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बात एक्सप्लेन करूंगी कि इस लेक्चर में आप ये बात समझ लीजिए कि कम्युनल जो वायलेंस था वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम द औरंगजेब, और ग्रेजुअली वो जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में, when people were united themselves on economic or religious platforms. लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, यहाँ तक आप एक बात याद रखिए कि पीपल जो इंडियन पीपल वर नॉट यूनाइटेड। ठीक है, सो इंडियन पीपल वर नॉट हैव एनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर अपनी रिलीजन की बेस पे, इकोनॉमिक कॉजेस की बेस पर दे वर यूनिफाई देमसेल्व्स, बट दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जो आगे अगले फेज में हम देखेंगे ब्रिटिश पीरियड में कि ब्रिटिश प्रोवाइडेड देम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू टू गेन देयर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो फेज है मुस्लिम पीरियड का, इसके अंदर पीपल इंडियन पीपल वर यूनाइटेड देमसेल्व्स ऑन कम्युनल बेसिस। तो कम्युनलिज्म जो है उसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन वो स्ट्रेंथन कैसे हुआ ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में डिलीवर करूंगी। सो नाउ वी शुड कंक्लूड दैट इंडिया has been a multi-religious society for centuries, but they have forces of tolerance which were disturbed by inefficiency of the later Mughals. Okay, thank you, students.